Hello and welcome to my dear students of class 10th. Hope you everyone well at your home. I'm your computer teacher, Mr. Tarkeshwar Yadav. Have you know me? And students, let us begin today's topic, communication skills second. You know that is your first chapter, and when the physical classes is run in the previous time, I talked about the some part of this communication skill. Today we have just talked about that next things in this communication skill second. Hope you learn it and enjoy it. Let us begin the first slide. The first thing is that barriers in effective communication. I think everyone just know about that effective communication, how should be conducted, but it is very it is very important things we have to just know about what is the barriers in the effective communication, those the drop of communication in this way. Suppose that we have just talked about that the first barrier, the name is a physical barriers. The physical barriers, it means what? This type of barriers in communication process refer to the interface to effective communication occurring the environment where communication is undertaken. Okay, so it means you can say that in this it can be distance between pupil, a noisy system near telephonic, poor lighting, bad health, and many more. So that is the physical barriers. I hope you understand about it. It means when you have just some distance from the pupils, I think you are in just crowd place, then you will be not get the just communication should be in an effective mood. Second thing is the psychological barriers. So psychological barriers, this type of barriers refer to disturbance which distract the communicator to prevent the from paying attention to the message when interpreted when the encodings message from the persons suddenly what's happened that the second one just not able to just listen the voice of the sender, and they are not decoding correctly. So that is the psychological barriers. Second last third last Third option, linguistic and cultural barrier. A language is the expression of the thought and expressions of people in terms of their cultural environment. Each major region has its own language and culture. It can be barrier when a person does not know the language. सपोज किसी को हिंदी आती है, किसी को भोजपुरी आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को तेलुगु आती है, बट how can we just you understand तेलुगु लैंग्वेज व्हेन यू आर जस्ट लिसनर ऑफ हिंदी. ठीक है, तो ये कल्चरल का भी कुछ है, लिंग्विस्टिक है. ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिकल बैरियर्स. This type of barrier are raised by the channel or medium itself. Channel becomes the barrier when it is interfered with the some disturbance with the prevent some of the element of masses to reach their destinations. For example, sometimes the voice of a person in a phone call break down. This is caused by the network problem. Okay, so there are four types of barriers in effective communication. You will learn from there. And the next is measure to overcome barriers. Okay, first is eliminating difference in perceptions through effective communication or by understanding the mentality of the receiver before presenting view on a topic. The difference in perceptions, preconceived thinking और idea about the topic भी eliminating. ठीक है, जो आपको डिस्क्राइब करना, जो आपको बताना है, फर्स्टली पहले रिसीवर की मेंटलिटी को देख लीजिए, रिसीवर क्या उस योग्य है, फिर उसके बाद अपना टॉपिक सेलेक्ट करके आप टीच कर दीजिए. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज. Because if you are just suddenly talk to them, and if you just talk in the local language of them, they have just understand about what you want to say to him. अगर आप उसको उसकी लोकल भाषा में नहीं समझाते हैं और ज़रा अंग्रेजी बोलेंगे, दे हैव जस्ट कन्फ्यूज अबाउट इट. हाउ कैन यू जस्ट
catch the meaning. You know that in the communication very important thing to decoding the messages. ठीक है, तो जब डिकोड नहीं कर पाएगा तो उसका आउटपुट कुछ निकलेगा नहीं. रिडक्शन ऑफ एंड एलिमिनेटिंग द नॉइजी लेवल. ठीक है, आप जहाँ भी रहें, ठीक है, उसको ध्यान रखें कि वहाँ पर ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, बच्चे उच्चे ज़्यादा शोर ना करें, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रख के आप जो है कि नॉइजी प्लेस को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये तो सभी लोग जानते हैं आई थिंक. अच्छा, एक टॉपिक और रह गया है उसमें का. ठीक है, फर्स्ट है प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन. ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे किस मीडियम के द्वारा आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. अगर मान लीजिए फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है, यू शुड बी सेंड द मैसेजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक नीड ऑफ फॉर ह्यूमन. ये सभी लोग जानते हैं. ठीक है, कि बिना कोई बात किए किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और ना ही वो कभी ग्रोथ करता है. सम प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. जैसे फर्स्ट क्या है, क्लैरिटी इन आइडियाज़. ठीक है, क्लैरिटी इन आइडियाज़ इट मीन इट शुड बी क्लियर टू द सेंडर व्हाट टू बी कन्वेड. ये क्लियर होना चाहिए कि कल क्रिकेट मैच है तो भी वो समझ पाएगा कि हाँ कल क्रिकेट मैच है, वरना परसों का क्रिकेट मैच है कल कहोगे तो वो समझ नहीं पाएगा. ठीक है, तो जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपका गिविंग कन्वेइंग मैसेज है, वो इट शुड बी क्लियर दैट, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. एपोरिएट लैंग्वेज. एपोरिएट लैंग्वेज इट आइडिया शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ सिंगल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. मैंने बोला था ना अभी कि आपको जो पढ़ाना है, जो समझाना है, जो चीज़ें बोलनी है, उसको लोकल लैंग्वेज में बोल दीजिए, वो तुरंत समझ जाएगा. इट शुड बी अंडरस्टैंड सडनली. इट शुड बी अंडरस्टैंड सडनली. अटेंशन. द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक. ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है. ठीक है, कि जब आप कभी किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अगर वो हाँ ना कहे, वो यस ना बोले, तो आप समझ जाइए कि आपका मैसेज अच्छी तरीके से कन्वे नहीं हो पा रहा है. तो अटेंशन रखना पड़ेगा. ठीक है, तभी पता चलेगा कि अगला इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगला इंटरेस्टेड नहीं है. फिर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी मेंटेन कंसिस्टेंसीज इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स. देयर शुड बी सिमिलरिटीज़ इन द फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, जब कोई कंसिस्टेंट होगा, जो कंसिस्ट होकर किसी चीज़ को सुनेगा, तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा. ठीक है, सेकेंड है एडेक्वेसी. एडेक्वेसी इट मीन्स you can say that the information sent to the receiver should be sufficient and complete in every aspect. ठीक है, अभी देखो मैं पढ़ा जो रहा हूँ, ये चीज़ें पीछे पढ़ी हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा भी पढ़ा दूंगा तो भी तुम एडजस्ट कर लोगे. लेकिन अगर शुरुआती टाइम रहता और मैं इसको पढ़ाता तो शायद ये एडजस्टेबल नहीं होता. तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सॉरी एडेक्वेसी होनी चाहिए. फिर है प्रॉपर टाइम. ठीक है, द मैसेज शुड बी रीच द रिसीवर वेन एवर इट्स नीडेड. अब मान लो कि मेरा टाइम है 10:30 पर तुम्हारे क्लास ग्रुप में भेजने का, अगर मैं 10:40 पे भेजूंगा तो वो प्रॉपर टाइम में नहीं होगा. फीडबैक इट इज़ मस्ट. फीडबैक इज़ एसेंशियल फॉर द सेंडर. अब मैंने ये पूरा टॉपिक जब पढ़ा लूँगा तो फिर तुमको एक क्वेश्चन दूंगा, वो जब क्वेश्चन का रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यू शुड बी वॉच इट. एंड अगर नहीं तुमने अगर रिप्लाई दिया तो इसका मतलब तुमने उसको वॉच नहीं किया. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रॉपर मीडियम. प्रॉपर मीडियम इज चूजिंग अ प्रॉपर मीडियम एज पर रिक्वायरमेंट इट नेसेसरी. मीडियम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज 7C ऑफ कम्युनिकेशन. देखो 7C का मतलब है 7 ऐसे सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिकेशन में. सबसे पहले क्या है, कॉन्साइज. ठीक है, वन शुड स्टिक टू पॉइंट एंड कीप इट इज़ शॉर्ट. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए और उसको शॉर्ट में कहना चाहिए. जो भी चीज़ें बहुत लॉन्ग नहीं लेके जाना चाहिए. कंक्रीट. ठीक है, द मीटिंग ऑफ द मैसेज. थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा देख लेंगे उसको. कंक्रीट में यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है मैसेज में. ठीक है, मैसेज शुड बी स्ट्रॉन्ग शो दैट द ऑडियंस अंडरस्टैंड ईजिली व्हाट द मैसेज वांट टू कन्वे. ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा मैसेज अंडरस्टैंडेबल तो वो समझ में नहीं आएगा. करेक्ट. द कम्युनिकेशन शुड बी एरर फ्री. ये इंपॉर्टेंट रोल है भाई, कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो वो एरर फ्री हो. क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में. ठीक है, वाइल कम्युनिकेटिंग बी क्लियर अबाउट द गोल ऑफ मैसेज, श्योर अबाउट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस.
coherent. All points of the message should be correct to each other and should be relevant to main topic. The next is complete. The message should be complete and include all the relevant information. It should not be just half and some portion of that message. और जो भी मैसेज दो फुलफिल कंप्लीट दो, आधा अधूरा दोगे वो कुछ समझ नहीं पाएगा. फिर है courteous. The communication should be honest, respect to full and friendly. ओके, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक ना. ये किसी से मतलब बहुत ज़्यादा उदंड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है. आपको जो भी बात करनी चाहिए वो थोड़ी सी इफेक्टिव वे में होनी चाहिए और कुछ उसका मीनिंग निकले, ठीक है. जैसे फ्रेंडली का ऑप्शन होता है, जैसे किसी से कुछ कहना बहुत इजीली तरीके से, ठीक है. नाउ कम जस्ट माय क्वेश्चन. ओके, माय क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल डू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. टुडेज क्वेश्चन, everyone just reply that question. Thank you.